رضا بھی ظاہر ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب احترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، میں اور آپ اس وقت اس ماہانہ درس قرآن میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور جو موضوع حکم فرمایا گیا آقا کائنات فخر موجودات خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم معجزاتی سفر جس کو سفر معراج النبی کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت کی ذات حکیم ذات ہے، اور اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کے ہر کام کے اندر، ہر ارادے میں، ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا بڑا واقعہ ہے، اس کے اندر بھی یقیناً بہت سی حکمتیں ہیں جن کو مفسرین نے، محدثین نے اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنے اپنے اندازے کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف تفاسیر کے اندر اور شروحات حدیث کے اندر بیان کیا کہ اس سفر کی حکمت کیا تھی۔ سب سے پہلی بات کہ یہ سفر جس دور میں ہوا، یہ نبوت کا کیا مسائل ہے۔ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی، مکہ المکرمہ میں ہے، اور اعلان نبوت کو 11واں سال ہے، اور اس 11ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں، اور بعض روایات میں ہے کہ حتیم کعبہ کے اندر حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور آرام فرما تھے، وہاں سے سفر کا آغاز ہوا۔ یہ نبوت کا 11واں سال ہے۔ اس سے ایک سال قبل، جس کو نبوت کا 10واں سال کہتے ہیں، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن، غم کا سال قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اعلان نبوت کے بعد ہی
कुफार मक्का की तरफ से, कुरैश मक्का की तरफ से जुल्म और सितम के जो पहाड़ तोड़े गए, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उसके बाद ताइफ का वाक़या है, और फिर ताइफ के वाक़े के साथ ही वो 3 साल जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैब अबी तालिब के अंदर समाजी बाइकाट के, समाजी मुकातिया के गुजारे। समाजी तौर पर नबी अलैहिस्सलाम और आपके खानदान का बाइकाट कर दिया गया। उन 3 सालों में शैब अबी तालिब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा करते रहे। नबूवत के 10वें साल जब ये बाइकाट खत्म हुआ, तो इसी नबूवत के 10वें साल 2 गम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना पड़े। एक तो आपकी महबूब ज़ोजा, जिनके पाकीज़ा माल को खुदा ने इस्लाम की बुनियादों के लिए पसंद किया था, हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल हुआ। और इसी नबूवत के 10वें साल आपके गमगुसार चचा अबू तालिब भी दुनिया से रुखसत हुए। नबी अलैहिस्सलाम ने इस साल को गम का साल करार दिया कि ये आमुल हुज़्न है, गम का साल है। अगला साल 11वां साल ये मेराजुन नबी का साल है। और इस साल अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सफर मेराज पर बुलाया, तो उसकी हिकमत उलमा ने ये बयान की कि वो जो 10 साल हुजूर ने गम देखा था, जुल्म और अज़ियत को बर्दाश्त किया, सितम के पहाड़ तोड़े गए, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी इस्लाम की तबलीग जारी किए हुए थे। तो अल्लाह की तरफ से पैगाम ये था कि हबीब आप गमगीन न हो, आप इस सफर मेराज पर आए, बारगाह रब्बे कुद्स में हासिल हो, आप मुझे देखें, मैं आपको देखूं, ताकि आपके सारे गम दूर हो जाए। वो जो नबी अलैहिस्सलाम ने दीनी मसाई और दीनी काविशें थी, उन दीनी खिदमात का सिला मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। अब इस सफर मेराज के 3 मरहले हैं। पहला मरहला हदीम काबा से मस्जिद अक्सा तक, जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है, और उसके हवाले से आगाज में मैंने आयत आपके सामने पढ़ी। एक आयत है, और उस एक आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 7 सवालों के जवाब दिए हैं। इंसानी ज़हन के अंदर ये सवाल उठता है कि सफर मेराज पर लेकर पहुंच गया, और जाने वाली हस्ती किसकी थी, और ये सफर शुरू कहां से हुआ, और इसका पहला मरहला खत्म कहां हुआ, और फिर ये कि ये किस वक्त हुआ और कितने वक्त में हुआ, और इस सफर का मकसद क्या था। इन 7 सवालों के जवाब रब्बे कायनात ने कुरान की एक आयत में अता फरमाया। सुभान अल्लाह, पाक साथ लेकर गई, किसको लेकर गई, बेअब्दे ही, अपने बंदे खास को ले गई। कहां से शुरू हुआ, फरमाया मिनल मस्जिदिल हराम, ये मस्जिद हराम से शुरू हुआ। पहला मरहला मुकम्मल कहां हुआ, फरमाया ये मस्जिद अक्सा तक था। मकसद क्या था, फरमाया रब अपनी निशानियां दिखाना चाहता था। किस वक्त हुआ, फरमाया रात के वक्त, और कितना वक्त लगा, फरमाया पूरी रात भी नहीं लगी, रात का थोड़ा सा हिस्सा लगा। ये सफर मेराज का पहला मरहला है जिसको कुरान ने बयान किया। इससे आगे 2 मरहले हैं। एक सफर मेराज का वो मरहला है जो मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक है, और तीसरा और आखिरी मरहला सिदरतुल मुंतहा से बारगाह रब्बे कुद्स तक और लामकान तक। ये दोनों मरहले खुद नबी अलैहिस्सलाम ने सही अहादीस के अंदर, मुतवातिर अहादीस के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान किया, और वहां जो रब का कुर्ब हासिल हुआ उसको कुरान ने दोबारा बयान किया। तना फतदल्ला फकान काबा कौसैन औ अदना, इसको कुरान ने बयान किया, और तफसील उस सफर की वो खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। आप जरा इस सूरह असरा के उसलूब पर गौर कीजिए कि कुरान ने आगाज कैसे किया। सुभान अल्लाज़ी, पाक है वो जात जो ले गई, किसको, अपने बंदे खास को। इंसानी फितरत है, इंसान जब किसी ऐसी चीज को देखता है जो उसकी अकल में आने वाली ना हो, तो वो उसका इनकार नहीं करता, वो कहता है ये रब की कुदरत है। तो उसकी जुबान से बेसाख्ता सुभान अल्लाह के अल्फाज निकलते हैं कि मैं यहां अकल के घोड़े नहीं दौड़ाऊंगा, और ये नहीं सोचूंगा कि ये कैसे हुआ, ये तो हो नहीं सकता।
बल्कि वो ये जानता है कि अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह की कुदरत से कुछ भी हो सकता है, तो वो सुभान अल्लाह कहकर एतराफ करता है रब की कुदरत का, उसकी अज़मत का। तो कुरान ने पैगाम दिया कि जब भी वाक़या मेराज पढ़ो, अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने, सुभान अल्लाह कहकर खुदा की अज़मतों का एतराफ करना। ये बाद में देखना कि लेकर कौन गया है, ये बाद में देखना गया कौन है, पहले ये देखो ले जाने वाला कौन है। ले जाने वाली वो सुभान ज़ात है जिसने आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया। ले जाने वाली वो सुभान ज़ात है जिसने नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती में बिठा कर किनारे लगाया। ले जाने वाली वो सुभान ज़ात है जिसने मूसा को दूर पर बुलाकर हम कलामी का शर्फ पहुंचा। ले जाने वाली वो सुभान ज़ात है जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया और नारे नमरूद को उन पर जन्नत का बाग बनाया। ले जाने वाली वो सुभान ज़ात है जिसने इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए फिदिये के तौर पर जन्नत से दुम्बा भेजा था। ले जाने वाली वो सुभान ज़ात है जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठाया। फरमाया वो सुभान ज़ात ही अपने हबीब को सफर मेराज पर ले गई। इसलिए ये बाद में देखना गया कौन है, पहले ये देखो ले जाने वाली ज़ात किसकी है। अब जब ये देखोगे कि ले जाने वाली ज़ात किसकी है, वो सुभान ज़ात है और अकल के तराजू पर नहीं तोलोगे, तो एक पैगाम ये भी दिया कि अगर वाक़या मेराज को अपनी अकल के तराजू पर तोलोगे तो हाल अबू जहल वाला होगा। अगर इसके तराजू पर तोलोगे और इसके बयान पर रखकर वाक़या मेराज को समझोगे तो फिर तुम गुलाम कहलाओगे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तुम्हारा मिजाज सिद्दीक़ अकबर वाला मिजाज होगा अगर वाक़या मेराज नबी को इसके और मोहब्बत के आईने में समझने की कोशिश करोगे। अब आप तवज्जो कीजिए, आगे कुरान ने क्या कहा, असरा, सफर नहीं कहा, कुरान ने सैर कहा। और सफर और सैर में फर्क होता है। क्या फर्क है सफर और सैर में? सफर के अंदर इंसान उठता जाता है, बेजारी का इजहार करता है, कभी वो दाएं देखता है बाएं देखता है, बेतवज्जुही का शिकार होता है, लापरवाही का शिकार होता है। वो किसी चीज को दिलजमी से नहीं देखता, वो इस इंतजार में होता है कब ये सफर मुकम्मल हो और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, क्योंकि सफर को अजाब का टुकड़ा कहा गया है। लेकिन कुरान ने कहा यह सफर नहीं था। और जो सफर का लफ्ज भी बोला जाता है वो सैर के माने में बोला जाता है, वो सफर नहीं जो दुनिया में हम करते हैं। सफर और सैर में फर्क क्या है? फरमाया सैर खुशी से होती है, उसमें इंसान तहर का शिकार नहीं होता। जब इंसान अपनी मर्जी से बाग में जाता है, सैर के लिए जाता है, वो हर चीज को तवज्जो से देखता है, खुशी खुशी देखता है। ये मोतिये का फूल है, ये गुलाब का फूल है, ये चमेली का है, ये गेंदे का है, ये फलां दरख्त है, फलां दरख्त है, फलां दरख्त है। वो हर एक चीज को देखता है, खुशी से देखता है। लेकिन हो सकता है कि बाग का कोई कोना उसकी निगाहों से पोशीदा रह जाए, लेकिन अगर बाग का मालिक भी साथ हो, सैर करवाने वाला भी साथ ही हो, और बेहद ही कि बाग और हार भी बताती हो कि सैर करने वाला अकेला नहीं था, जिसने सैर करवाई वो भी साथ था, और हरीम काबा से लेकर लामकाम तक साथ था, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि हरीम काबा से लेकर लामकाम तक कायनात का कोई गोशा सैर करने वाले की निगाह से पोशीदा रह गया। फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे रिहा हो बना, जब खुदा ही ना छुपा तुम पर करोड़ों दरूद। कि जब सफरे मेराज में खुद खुदा भी साथ है, तो फिर सफरे मेराज में कौन सा कोना है कायनात का जो हुजूर की निगाहों से पोशीदा था। दूसरी हिकमत सफरे मेराज की ये थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने नबी आए, हर नबी ने अल्लाह की तौहीद की गवाही दी। हर नबी ने कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, और उसका कोई हमसर नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। हर नबी ने ये गवाही दी, और सरकार की गवाही भी यही थी कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है। लेकिन सारे नबियों की गवाही में और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही में फर्क है। क्या फर्क है? हज़रात फर्क ये है, आदम से लेकर ईसा अलैहि सलाम तक हर
नबी ने अल्लाह के एक होने की गवाही दी, लेकिन अगर हम आलम तसव्वुर में आदम अलैहिस्सलाम से पूछें, आप ये तो कहते हैं कि अल्लाह एक है, तो क्या आपने अल्लाह को देखा भी है? तो वो जवाब देंगे मैंने देखा। सारे बोले जरा, मैंने देखा नहीं है, लेकिन चूंकि उसने मुझे बनी इंसान का बाप बनाया और बगैर माँ बाप के पैदा किया, अपने दस्ते कुदरत से तखलीक किया, तो मुझे उसके होने का यकीन है। मैंने देखा नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ, आपने देखा है? तो जवाब आया, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन उसके हुक्म पर मैंने कश्ती बनाई और ईमान लाने वालों को कश्ती में सवार किया, और कश्ती दरिया की तुगयानी से बचकर किनारे लग गई, तो मुझे उसके होने का यकीन है। मैंने देखा नहीं है। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से पूछा, आपने देखा है? तो मैं देखा मैंने भी नहीं, लेकिन मैंने दूर पर जाकर उससे कलाम किया है और एक तजल्ली भी देखी है, झलक भी देखी है, जलवा नहीं देखा। यही जवाब इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का है कि मैंने रब के एक होने का पैगाम तो दिया, लेकिन मैंने खुदा को देखा नहीं है। उसने मन पर नारे नमरूद को जन्नत का बाप बनाया, मैंने देखा नहीं उसको। यही जवाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने दिया कि मैंने खुदा को देखा नहीं, लेकिन मुझे उसके होने का यकीन इसलिए है कि जब छुरी के नीचे मेरी गर्दन थी, छुरी चल नहीं रही थी, जन्नत से दुआ फिदिये के तौर पर आया, तो मुझे उसके होने का यकीन है, लेकिन मैंने देखा नहीं है। यही जवाब ईसा अलैहिस्सलाम का है कि उसने मुझे बगैर बाप के पैदा किया और जिंदा आसमानों पर उठाया, मैंने देखा नहीं उसको, लेकिन मुझे उसके होने का यकीन है। हर नबी अल्लाह के एक होने की गवाही देता था, लेकिन गवाही मुकम्मल वो होती है जो देख कर दी जाए, उसमें सुनना भी हो, देखना भी हो। जहां सुनना तो था, देखना नहीं था, तो फिर आमिना के लाल आए, खातमुन नबीयीन आए, अपने नबूवत का ताज सजा कर आए। अब इनके बाद तो क़यामत तक किसी नबी ने नहीं आना था, और तौहीद की वो गवाही जो सारे नबी देते रहे, उस गवाही ने ज़ाते मुस्तफा पर मुकम्मल होना था। तो सरकार ने भी ये भी फरमाया कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह एक है। तो पूछने वालों ने पूछा, आप जिस खुदा की वाहदानियत की बात करते हैं, सारे नबी यही बात करते रहे, लेकिन किसी ने खुदा को देखा नहीं था, आपने देखा है? फरमाया रअयतु रब्बी फी अहसनि सूरा, हाँ मैंने अपने रब को देखा है। कब देखा है? फरमाया मेराज की रात मैंने सर की आंखों से अपने रब का दीदार किया। मुकम्मल हुई ज़ाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेराज की रात अपने रब का जलवा देखकर ऐलान किया, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह एक है। और फरमाया ये तौहीद खुदाबंदी की गवाही सिर्फ सुनने पर नहीं, देखने पर है। और मैंने सर की आंखों से अपने रब का दीदार भी किया है, रब को देखा है, रब से हम कलाम हुआ, उसने अपना कुर्ब भी अता किया और मुझे शर्फ दीदार भी बख्शा। इस बात पर भी तवज्जो फरमाएं, 4000 साल से फरिश्तों की बात जारी है। कफारात क्या है, निजात देने वाली चीजें क्या हैं, दर्जात बढ़ाने वाली चीजें क्या हैं, सदकात क्या है। 4000 साल से जिब्रील अमीन, इसराफील, इज़राइल, मीकाईल, इनकी बात जारी है 4000 साल से। और जब सरकार तशरीफ लाए तो फरिश्तों ने कहा कि मुश्किल कुशा आगे है। अब ये जवाब देंगे हमारे सवालों का। जिस वक्त मेराज की रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह रब्बे कुद्स में पहुंचे, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब्बे कायनात ने मुझसे पूछा, ए हबीब बताइए ये फरिश्ते किस चीज में बात करते हैं। मैंने अर्ज किया, या अल्लाह तू ही जानता है। रब्बे कायनात ने अपने दस्ते करम को अपनी शान के मुताबिक, अपनी शान के लायक अपने दस्ते करम को हुजूर फरमाते हैं कि मेरी शानों के दरमियान में रखा, और उसकी ठंडक को, अल्लाह के दस्ते करम की ठंडक को मैंने अपने सीने में महसूस किया। और फिर रब ने फरमाया, हबीब आप बताइए ये फरिश्ते क्या पूछते हैं। मैंने कहा, या अल्लाह इनके सवाल ये हैं, ये कफारात के बारे में पूछते हैं,
یہ سرکار کے بارے میں پوچھتے ہیں، درجات کے بارے میں پوچھتے ہیں، نجات دینے والی چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو حبیب ان کو بتائیے۔ تو سرکار فرماتے ہیں پھر فرشتوں نے مجھ سے وہ سوال کیا جو 4000 سال سے وہ باز کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو جواب دیا، جب میں نے جواب دے دیا تو اب رب نے فرشتوں سے کہا کہ وہ سوال جو 4000 سال سے تم آپس میں بحث کر رہے تھے اس کا جواب تمہیں نہیں مل رہا تھا، جو میرے حبیب نے تمہیں جواب دیے ہیں، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میرے حبیب بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ فرماتے واقعہ معراج النبی کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ان سوالوں کے جواب کا حل بھی عطا کیا گیا۔ اور پھر حضرات اس بات پر توجہ فرمائیے، جو نبی جس دور میں آیا اس نبی کو اس دور کے حوالے سے معجزہ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جس دور میں آئے یہ دور تھا جادوگری کا، بڑے بڑے جادوگر اس دور کے اندر موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے وہ اس حوالے سے وہ اپنی لاٹھی کو حکم دیتے تو وہ سانپ کی شکل اختیار کر لیتا، اپنے ہاتھ کو بغل کے نیچے رکھتے تو وہ چاندی کی طرح سفید ہو جاتا۔ یہ معجزات تھے جادو کے ساتھ جن کا تعلق تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے یہ حکمت کا دور تھا، طب کا دور تھا۔ ان کو جو معجزہ ملا وہ طب اور حکمت کے حوالے سے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کو اور برس کے دائمی مریضوں کو رب کے حکم سے شفا یاب کر دیتے۔ نبی علیہ السلام جس دور میں آئے یہ فصاحت اور بلاغت کا دور تھا، اور عرب کے اندر بڑے بڑے شعراء موجود تھے جن کو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا، اور وہ کلام لکھتے، قصیدہ لکھتے، نظم لکھتے، کعبے کے دروازے پر لٹکا دیتے، چیلنج کرتے اس کا جواب ہے تو لاؤ۔ اب دوسرا شاعر اس کا جواب لکھ کر لے آتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، قرآن کی سب سے مختصر سورہ سورہ کوثر نازل ہوئی۔ سرکار نے فرمایا بلال سورہ کوثر کو لے جا کر کعبے کے دروازے پر لٹکا کر عرب کے شعراء کو چیلنج کرو، تمہیں اپنی زبان پر بڑا ناز ہے نا، لاؤ قرآن کی سب سے مختصر سورت کا جواب۔ تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر، قلم پر، نظم پر، شاعری پر، قصیدوں پر بڑا ناز ہے، تو قرآن کی سورہ کوثر کا جواب لکھ کر لاؤ۔ مدتوں وہ سورہ کوثر کعبے کے دروازے پر لٹکتی رہی۔ عرب کے بڑے بڑے شعراء، امرؤ القیس جیسے شاعر، بڑے بڑے شاعر، انہوں نے گھٹنے ٹیک کر کہا ما ھذا کلام بشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا ہم اس کا جواب دے دیتے۔ اب یہ معجزہ قرآن کا اس دور کے حوالے سے تھا کیونکہ وہ دور فصاحت و بلاغت کا تھا، لیکن قیامت تک ہر زمانہ بھی تو میرے نبی کا زمانہ ہے، ہر دور بھی تو میرے نبی کا دور ہے، ہر عہد بھی تو میرے نبی کا عہد ہے، ہر زمانہ سرکار کا زمانہ ہے۔ اور رب کے علم میں یہ بات تھی کہ چونکہ حضور تو قیامت تک ختم نبوت کا تاج سجا کر آئے ہیں، زمانہ ترقی کرتا رہے گا، تو ایک دور ایسا بھی آئے گا ناسا جیسے ادارے وجود میں آ جائیں گے، لوگ خلا میں جائیں گے، خلائی مشن بھیجیں گے، کوئی چاند پر قدم رکھے گا، کوئی سورج پر قدم رکھے گا، کوئی ہواؤں کو مسخر کرے گا، کوئی فضاؤں کو مسخر کرے گا، کوئی سورج پر چاند پر جانے کی بات کرے گا۔ تو رب نے 14 صدیاں پہلے کہ کہیں آج سائنس کی بنیاد پر کوئی سائنسدان خدا ہونے کا دعویٰ نہ کر دے، آج سے 14 صدیاں پہلے رب کائنات نے اپنے حبیب کو معراج کی رات ان بلندیوں پر بلایا اور بلا کر یہ اعلان کیا کہ سائنس قیامت تک جتنی مرضی ترقی کر لے وہ ان بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں مصطفیٰ کریم کے قدم رکھے۔ فرمایا وہ معجزہ قیامت تک ایسا معجزہ خدا نے دیا، اس کا کوئی جواب ہو سکتا نہیں۔ فرمایا سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے وہ معراج کی بلندیوں کو پہنچ سکتی نہیں۔ اب جب سفر معراج کا آغاز ہوتا ہے، لیکن یہ جس طرح سن رہے ہیں معراج اس طرح سنا نہیں جاتا۔